This is the third video of lesson number 9, direct proportion and inverse proportion. Now in this video we are going to see the next third point, that is partnership. From the word only we understand that is somewhere in this process two or more than two persons are involved. Then only they can become partners. Okay. What is this partnership? Partnership means when any business or something activity is started by two or more persons by investing money. Okay. Then such type of activity is called as partnership activity. Okay. Let us see the detailed information. When starting a business enterprise, money is required for an office, raw material, etc. This amount is called capital. Okay. कौन सा भी ऑफिस चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है. ओके. क्योंकि उसका ऑफिस चालू करना है, उसके लिए कुछ ऑफिस का कुछ सामान वगैरह कुछ जो कुछ भी है उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है. ओके. उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल. ऑफन टू और मोर पीपल पुट इन मनी फॉर द कैपिटल. ओके. और इसमें कभी दो नहीं तो दो से ज्यादा, then that number varies. Then maybe two or more, then for that there is no limit. Okay. Maybe 10, maybe 100, maybe thousands. Okay. तो ऐसे लोग एक साथ इक्वली और अनइक्वली दे पुट मनी फॉर दिस कैपिटल, यानी उसके लिए जो पैसा चाहिए, वो बिजनेस खड़ा करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए जो कैपिटल, तो वो कैपिटल ये दो नहीं तो दो से ज्यादा लोग कलेक्ट करते हैं. इन अदर वर्ड्स, these people start a business by investing in the partnership. यानी सिंपल वर्ड में अगर देखा तो ये सारे लोग, दो से ज्यादा जितने भी है, ये सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के लिए. ओके. उसको ही क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. वो पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करते हैं. इस इन द बिजनेस पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव अ जॉइंट अकाउंट इन अ बैंक. ओके. जब ऐसा पार्टनरशिप में अगर कोई ऐसा बिजनेस चालू होता है, ओके, तो सारे पार्टनर्स का एक बैंक में एक अकाउंट होता है. हम लोगों ने देखा है बैंक जॉइंट अकाउंट वगैरह. ओके. इवन आप लोगों का भी बैंक में होगा जॉइंट अकाउंट विथ योर पेरेंट्स. तो ऐसे एक जॉइंट अकाउंट होता है. वो सारा जो पैसा जो होता है जॉइंट अकाउंट पर जमा होता है. Then the profit made or the loss incurred is shared by the partners in proportion to the money each one has invested. Okay? और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस होता है, जो कुछ भी है वो सारे पार्टनर्स शेयर करते हैं. इन विच प्रोपोर्शन, तो वो जिसने जितना पैसा दिया है उसी प्रोपोर्शन में उतना प्रॉफिट, नहीं तो उसी प्रोपोर्शन में उतना लॉस, वो सबको लेना ही पड़ता है. They have to incur it. Okay. This is all about the partnership. Information about the partnership. Okay. Once again I revise it. What is partnership? When two or more people, they come together, they invest money for any business or for any enterprise. Okay. And they start a business by investing some money by all in a specific proportion. ओके. उसके लिए बैंक में उनका एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट पर सारे पैसे जमा होते हैं. ओके. और उससे जो प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस होता है. ओके. वो सारे पार्टनर्स उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने पैसे दिए हैं उसी प्रोपोर्शन में उनको प्रॉफिट नहीं तो लॉस लेना ही पड़ता है. ओके. तो एग्जाम्पल, हियर सॉर्ट एग्जाम्पल्स आर देयर. ओके. यू मस्ट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक. हियर वन एग्जाम्पल इज देयर, झेलम एंड अथर्व. ओके. हियर Chinmay and Sam. Okay. On next page again, sort examples. This Chinmay and Sam's only this example is there. Okay. You must be having the textbook. Go through the sort examples. Here one more Abdul, Sejal, Soham's sort example is given. Okay. One more here example. Sarita Ben, Aisha and Minakshi started a business by investing. This sort example is given. Very nice examples are there. Every one of you go through these sort examples. Okay. It will give you more idea about the partnership. Then after these sort examples, directly practice set number 39 is there. We are going to see practice set number 39. In this
practice set. Total 5 examples are there. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 examples are there. I am going to solve these 5 examples. Okay. Let us see the first example of practice set number 39. What is it? Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. ओके सुरेश और रमेश दोनों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया. कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1,44,000 रुपीज. ओके कौन से रेशो में? 4:5. ओके यानी 4:5 का मतलब क्या है? सुरेश ने 4 पार्ट्स दिए और रमेश ने 5 पार्ट्स दिए. ओके और उन्होंने क्या किया? दे बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड. आफ्टर सम इयर्स, कुछ साल के बाद, दे सोल्ड इट, उन्होंने वो प्लॉट बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ओके उनको प्रॉफिट हो गया 20%, वो बेच दिया उन्होंने. ओके देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट. ओके तो क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों को कितना प्रॉफिट मिला. ओके ये जो 20% प्रॉफिट हो गया तो वो 20% प्रॉफिट भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:5. सुरेश को 4 पार्ट जाएंगे. ओके रमेश को 5 पार्ट जाएंगे यानी टोटल 9 पार्ट्स में हमें ये डिवाइड करना है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1,44,000 का 20% निकालना पड़ेगा यानी हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट. ओके उस प्रॉफिट को 9 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. उसमें से 4 पार्ट जाएंगे सुरेश को, 5 पार्ट जाएंगे रमेश को. ओके लेट अस सॉल्व इट ऑन द नोटबुक. Okay, everyone has understood the example. If not, then you are having the textbook. Just once again go through the question. Okay, now I'll explain the example. Okay, तो total profit कितना हो गया सुरेश और रमेश को? That first we will find out. So total profit. एग्जाम्पल में हमें इंफॉर्मेशन दी है 20%. ओके किसका 20%? 1,44,000 का 20%. ओके 20% यानी मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 100. दैट इज कॉल्ड 20%. राइट. ओके न्यूमरेटर 2 zeros, डिनोमिनेटर्स 2 0 कैंसल्स. व्हाट इज रिमेनिंग? 1,440 मल्टीप्लाइड बाय 20. 144 मल्टीप्लाइड बाय 2, 288 and these 2 zeros. Okay, this is the total profit, means 28,800. Okay, now the condition is because they have invested in the ratio of 4:5. Okay, so we have to write the information about it. The profit must also be shared in the same proportion. क्योंकि अगर उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर 4:5 है, ओके तो उनका प्रॉफिट का शेयरिंग भी 4:5 रेशो में ही होगा. करेक्ट. देन लेट सुरेश प्रॉफिट be 4x and रमेश प्रॉफिट, सुरेश का प्रॉफिट हमने कितना कंसिडर किया है? 4x एंड रमेश प्रॉफिट be 5x. ओके सो देयरफॉर तो इस फ्रॉम दैट व्हाट इक्वेशन वी गेट? 4x प्लस 5x दोनों का प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है? ₹28,800. सो दैट इज 9x इज इक्वल टू 28,800. ओके देयरफॉर x इज इक्वल टू 28,800 डिवाइडेड बाय 9. ये डिवाइडेड बाय 9, ये मल्टीप्लाइड बाय 9 है ना. अगर राइट साइड को लिया तो डिवाइडेड बाय 9. ओके सो देयरफॉर
x इज इक्वल टू, ये डिवीजन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है 3200। ये 3200 क्या मिला है, x की वैल्यू मिली है। ओके, किसी का प्रॉफिट नहीं मिला है हमें। ओके, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब इसके बाद हमें वो प्रॉफिट डिवाइड करना है दोनों में। ओके, नाउ देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट, सुरेश का प्रॉफिट हमने कितना क्या कंसिडर किया था, इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या है 3200 इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, इट बिकम्स 12,800। ओके, देन रमेश का प्रॉफिट, रमेश प्रॉफिट कितना कंसिडर किया था हमने 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3200, 5 एंड x की वैल्यू 3200 इज इक्वल टू, इसका आंसर मिलता है रुपीज 16,000। ओके, अब ये देखो, ये दोनों का अगर एडिशन करते हैं 16,000 प्लस 12,800, ओके 16 प्लस 12 इट बिकम्स 28,800। ओके, उतना ही प्रॉफिट हुआ है टोटल। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2। Example number 2 is Virat and Samrat together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. विराट और सम्राट दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। ओके, उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, विराट ने 50,000, सम्राट ने 1,20,000। ओके, दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अब इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, लॉस। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कैलकुलेशन है। उनको लॉस हो गया 20%। ओके, देन हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, तो हर एक को कितना लॉस आया। ओके, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहां पर सेपरेट सेपरेट इन्वेस्टमेंट दी है। ओके, पहले एग्जाम्पल में एक ही नंबर दिया था, अब इसकी 50,000 है, इसकी 1,20,000, ये दोनों की ऐड करनी पड़ेगी 1,70,000। उसका जो 20% है वो निकालना पड़ेगा, वो होगा टोटल लॉस। ओके, और उस लॉस को हमें इस रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सी एक्चुअली इन द while solving the example. Let us start solving. Okay, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। टोटल कैपिटल यानी दोनों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 1,70,000। राइट, ओके, देन टोटल लॉस, उनको लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस तो हो गया 20%। किसका 20%, 1,70,000 का 20%। सो 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 20% मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। 20% का मतलब क्या है, 20/100। ओके, तो न्यूमरेटर्स 20, डिनोमिनेटर्स 20 कैंसल्स, क्या बचा है इज इक्वल टू 1,1700 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, क्या इसका 17 2 34 और ये तो टोटल उनको कितना लॉस हो गया, रुपीज 34,000। 34,000 उनको लॉस हो गया। ओके, अब क्या करना है, ये लॉस दोनों में हम लोगों को बांटना है। ओके, वी हैव टू शेयर द लॉस। ओके, लेकिन उसका प्रोपोर्शन रेशो मालूम नहीं है हमें। ओके, उसका रेशो तो निकालना पड़ेगा ना। ओके, सो देयरफॉर प्रोपोर्शन ऑफ देयर लॉस, प्रोपोर्शन ऑफ लॉस कितना है, प्रोपोर्शन ऑफ लॉस तो जितना उनका कैपिटल का प्रोपोर्शन है इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। ओके, उनके कैपिटल का प्रोपोर्शन, तो पहले कैपिटल का प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। ओके, तो विराट ने कितने दिए थे 50,000, राइट। सम्राट ने कितने दिए थे 1,70,000, सॉरी 1,20,000।
ओके, ये हो गया उसका रेशियो. ओके, अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस. 1 2 1 2 1 1, ये क्या रेशियो बनता है, 5/12. ओके, ये हो गया उस, तो रेशियो 5:12, 5:12 ये हो गया. अब इस रेशियो में उनको लॉस देना है, बांटना है उनका. सो लेट विराट्स लॉस बी 5x and Samrat's loss be 12x. Okay, so therefore then 5x plus 12x is equal to कितना लॉस हो गया टोटल रुपीज में, 34,000. ये उनका टोटल लॉस है. ओके, so therefore 17x is equal to 34,000. So therefore x is equal to 34,000 divided by 17, that is x is equal to 2,000. ओके, यह हमें क्या मिला है, x की वैल्यू मिल गई है, किसी का लॉस नहीं मिला है, x की वैल्यू. अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस 5x and 12x we have to find the loss of each of one of them. Okay, so therefore विराट्स लॉस हमने कितना कंसिडर किया है, विराट का लॉस 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 2000. सो विराट का लॉस कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2000, इट इज 10,000. राइट, देन सम्राट्स लॉस, Samrat's loss is equal to how much it is, 12x is equal to 12 multiplied by 2000 is equal to, answer you will get 24,000. Alright, now this is the our final answer. Right, विराट को कितना लॉस 10,000, सम्राट को जाएगा 24,000. हम दोनों का मिलाकर कितना होता है 34,000. दैट ऑलरेडी वी हैव सीन इट, 34,000. ये 34,000 क्या है, 20% है किसका, 1,70,000 का. ओके, नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. व्हाट इज इट, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत. अब 3 लोग दिए. ओके, पहले 2 एग्जांपल में कितने दिए थे, 2 दिए थे. ओके, सुरेश, रमेश, विराट, सम्राट. थर्ड एग्जांपल में 3 पार्टनर्स आर गिवन. श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज. ओके, तीनों ने मिलकर 80,000. ओके, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना है, ये तीनों की अमाउंट है, कैपिटल. एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर. ओके, ये तीनों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, 80,000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किए. ओके, और कुछ बिजनेस चालू किया सोलापुर वाली सीट्स एंड टॉवेल बेचने का. ओके, श्वेता शेयर ऑफ कैपिटल वॉज 30,000. श्वेता, लेकिन आउट ऑफ दिस 80,000 श्वेता के कितने हैं, 30,000. ओके, बाकी बचे 50,000 इन दोनों की. एंड पीयूष 12,000. अब पीयूष के 12,000 है, तो नचिकेत के कितने बचे, 38,000. दैट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%. ओके, उनको 24% प्रॉफिट हो गया बाय द एंड ऑफ द ईयर. क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो क्वेश्चन पूछा है नचिकेत की इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमने ओरली तो हमने फाइंड आउट की है. ओके, 38,000. ओके, तो हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे कितना है, क्या है, एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए. This is the question. Let us see now. Okay, so Shweta's capital plus Piyush capital plus Nachiket's capital
नचिकेत्स कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। ये तीनों की मिलाकर टोटल कैपिटल बनती है, राइट। ओके, तो देयरफॉर श्वेता ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? इट इज गिवन 30,000। पीयूष ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? दैट इज 12,000। प्लस नचिकेत का कितना इन्वेस्टमेंट है वो दिया नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू कितना है टोटल कैपिटल? इट इज गिवन 80,000। ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट। ये दोनों के एडिशन करके राइट साइड में ले लो, माइनस हो जाएगा तो नचिकेत का मिल जाएगा। देयरफॉर 30,000 प्लस 12,000 42,000 प्लस नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट is equal to 80,000, right? Therefore, Nachiket's investment is equal to 80,000. ओके, ये प्लस, यहां पर देखो प्लस साइन है ना इसके लिए, तो ये अगर राइट साइड में लिया तो माइनस से, माइनस 42,000। ओके, 80,000 माइनस 42,000, आंसर यू विल गेट 38,000, वो जो हमने ओरली किया था। ओके, इन दिस वे वी गेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत। ओके, तो हमें अब क्या करना है, उनको प्रॉफिट कितना हुआ। दे मेड a profit of 24% on their total capital, right? 24% का प्रॉफिट हो गया उनको। देयरफॉर हेंस नचिकेत का प्रॉफिट, हमें वही फाइंड आउट करना है ना। नचिकेत्स प्रॉफिट इज इक्वल टू किसका 24%? 38,000 का ना। ओके, सो 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 24%। ओके, तो नचिकेत का प्रॉफिट क्या है? 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 24 अपॉन 100। हाउ इट इज? ओके, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उनको? 24%। ओके, तो हर एक को 24% मिलेगा, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 24%। तो नचिकेत की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 38,000, तो उसका 24% अगर निकालो तो उसका प्रॉफिट मिलता है डायरेक्टली। इज इक्वल टू 2020, cancels each other. So what is remaining? 380 multiplied by 24. Answer you will get now rupees 9,120. Okay, what is this? This is the profit of Nachiket. Okay, at last what question is asked? What was Nachiket's investment and what was his share of profit? So therefore answer Nachiket's investment was rupees 38,000 and his share of profit is rupees 9,120. Okay, that's all about this third example. Let us move to fourth example. Here is your fourth example. Okay, what is the example? A and B, नाम नहीं दिए से ले, okay, initials दिए। A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion of 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldiers welfare fund. Okay, A and B दो लोग हैं। ओके, उनको प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 24,500।
लेकिन उनको कौन सी प्रोपोर्शन में मिला? 3:7। सो हर एक ने 2%, उसमें से 2% शेयर किसको दिया? सोल्जर्स वेलफेयर फंड। Then what was the actual amount given to the fund by each of them? Let us see now. What is it? First information given that proportion of their capital, उनकी जो भी कैपिटल थी उसका proportion as well as of their profit. ओके तो प्रॉफिट जिस प्रोपोर्शन में है उसी प्रोपोर्शन में उनका इन्वेस्टमेंट होगा, एंड देयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? प्रोपोर्शन 3:7, राइट। देन हमें कुछ बातें कंसीडर करनी पड़ेगी। लेट द प्रॉफिट ऑफ ए बी 3x। वाई 3x? क्योंकि उसका प्रोपोर्शन में वो कितना आता है? 3 पार्ट से आता है वो, इसलिए 3x। ओके उसकी हिस्सेदारी ओनली इज ऑफ 3 पार्ट्स। ओके एंड ऑफ बी कितना है? 7 यानी उसका कितना आएगा? 7x। ओके सो देयरफॉर लेट द प्रॉफिट, सॉरी इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा हमें। सो देयरफॉर 3x प्लस 7x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, राइट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट उनको हुआ 24,500। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 24,500 डिवाइडेड बाय 10। ये मल्टीप्लाइड बाय 10 है, उधर जाने के बाद डिवाइडेड बाय 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 24,500 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2,450। ये क्या हो गई? x की कीमत है। ओके दिस इज द ओनली द वैल्यू ऑफ x। ओके अब इसको ये 3x 7x की रेशो में उसको कैलकुलेट करना है। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज हाउ मच? 2,450। ये क्या है? x की वैल्यू मिल गई। ओके देन उसके बाद ए का प्रॉफिट, एज प्रॉफिट, ए को कितना प्रॉफिट हो गया? 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2,450। ओके तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना होता है? ₹7,350। ओके देन बीज प्रॉफिट is equal to how much it is? 7x. तो 7x is equal to 7 multiplied by 2,450 is equal to ये टोटल कितना होता है? ₹17,150। ओके देन अब इन्होंने क्या किया? ये जो प्रॉफिट है इसमें से 2% किसको दिए? सोल्जर्स वेलफेयर फंड। ओके फॉर सोल्जर्स वेलफेयर फंड गिवन बाय इन्हें कितने दिए? 2% दिए ना, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 7,350 मल्टीप्लाइड बाय 2% यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 100। ओके तो 1 0 कैंसिल, 735 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 10। ओके इज इक्वल टू क्या आंसर मिलेगा?
सॉरी upon 10 is equal to 147. 147. राइट. देन सोल्जर्स फंड के लिए बी ने कितना दिया, इज इक्वल टू कितना दिया, उसका जितना प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट 17,150 मल्टीप्लाइड बाय 2/100. मल्टीप्लाई यानी 2% दिए ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/100. एक एक न्यूमरेटर का एक जीरो, डिनोमिनेटर का एक जीरो, कैंसिल. ओके, क्या बचा है 1715 मल्टीप्लाइड बाय 2/10. ओके, तो इसका आंसर कितना आता है, अपॉन 10, 0 0 कैंसल, इज इक्वल टू ₹343. ओके, ये डोनेशन है उनका. ओके, तो ए ने कितना डोनेट किया, ₹147. बी ने कितना डोनेट किया, 343. ओके, दैट वी हैव टू राइट इन आंसर. सो देयरफॉर आंसर, फाइनल आंसर. ओके, ए गेव, नहीं तो डोनेट बोल सकते हैं. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, गेव. ओके, डोनेशन का कुछ नहीं दिया है तो गेव. ओके, ₹147 and B gave ₹343 to soldiers welfare fund. Okay, that's all about this. Now let us see fifth example. Star is there for this, means it is little bit, okay, थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है. ओके, इतनी ज्यादा भी नहीं कि हाँ हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, कर सकते हैं. जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, अब 4 लोग पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 रुपीज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. 4 लोगों ने मिलकर कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 3,60,000. ओके, और पार्टनरशिप बनाए. ओके, विद देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द प्रोपोर्शन 3:4:7:6. इसका मतलब क्या है, जया की इन्वेस्टमेंट 3 पार्ट्स, सीमा की 4 पार्ट्स, निखिल की 7 पार्ट्स, नीलेश की 6 पार्ट्स. देन व्हाट वाज जयाज एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल, ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा, प्रॉफिट ऑफ 12%. देन हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक. ओके, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपली निकाल सकते हैं. Okay, what information is given? Total capital of Jaya Seema Nikhil and Nilesh is how much, is ₹3,60,000. ओके, तो उनका रेशो भी दिया है, सॉरी प्रोपोर्शन में उनका ये भी दिया है, कैपिटल. लेट देयर कैपिटल बी, कितना दिया है, पहला जया का दिया है 3, तो उसका 3x लेते हैं. सीमा का दिया है 4, यानी 4x लेते हैं. निखिल का दिया है 7, यानी उसको 7x लेते हैं. ओके, लास्ट में नीलेश का दिया है 6, तो इसका 6x लेते हैं, और इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जिसका नाम पहले उसकी फिगर पहले. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली. ओके, तो इससे हमें मिलता है एक इक्वेशन. क्या इक्वेशन मिलता है, 3x plus 4x plus 7x plus 6x and total investment कितना है, 3,60,000. ओके, तो ये चारों का टोटल कितना है, 7 plus 6 13 plus 4 17 plus 3 20, यानी ये 20x is equal to 3,60,000.
Therefore, x is equal to 3,60,000 divided by 20. Why divided by? क्योंकि 20 और x का साइन कौन सा है दोनों में? मल्टीप्लीकेशन. इसलिए 20 जब इधर आता है तो वो अपोजिट साइन लेता है, तो दैट इज डिवीजन साइन. न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल. यानी क्या किया मैंने? दोनों को 10 से डिवाइड किया. 10 से डिवाइड करने से इसका आंसर ये, इसका आंसर 2. ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू 36,000 का हाफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हाफ तो 18,000. ओके, ये मिल गई हमें x की वैल्यू. राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? JS कैपिटल. क्वेश्चन में पूछा है ना JS कैपिटल. JS कैपिटल कितना है? इज इक्वल टू 3x. उसका मतलब क्या है? इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी है? 18,000. तो इज इक्वल टू ₹54,000. ओके, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया. व्हाट वाज JH एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल, उसका आंसर तो मिल गया. ओके, अब बाकी दूसरे क्वेश्चन का सोचते हैं. दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%. ये इंफॉर्मेशन दी है. ओके, सो दे मेड a profit of 12%. Okay, so therefore total profit कितना हुआ? 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%. 3,60,000 का 12% ना, 2020. क्या बचता है? इज इक्वल टू 3,600 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू ₹43,200. ओके, क्या है? तो ये टोटल प्रॉफिट, किसी एक का नहीं है, सबका है टोटल प्रॉफिट. ओके, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट वो शेयर करना है सब में. ओके, इन प्रोपोर्शन. कौन सा प्रोपोर्शन? 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x. ओके, इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट? 43,200. सो देयरफॉर हाउ मच इट इज? 20x is equal to 43,200. Okay, therefore x is equal to 43,200 divided by 20. Okay, 0 0 cancel. Therefore x is equal to 4,320 divided by 2. आंसर मिलेगा 2,160. ये क्या मिला? टोटल प्रॉफिट. राइट, अब इससे हमें क्या निकालना है? निखिल का प्रॉफिट, लास्ट का क्वेश्चन. सो देयरफॉर निखिल्स प्रॉफिट. निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, निखिल का शेयर कितना है? 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2,160 इज इक्वल टू रुपीज. हाउ मच इट इज? 15,120. ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, ये उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है. ओके, पहले जय का एक्चुअल शेयर, तो वो तो हमें आंसर मिला है 54,000. ओके, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट किया 12%, वो तो हमने कैलकुलेट किया. देन हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक? तो निखिल का प्रॉफिट कितना है? 15,200. सो हियर वी कैन मेक निखिल्स प्रॉफिट is rupees 15,120. That's all. Here our practice set number 39 gets over and also lesson number 9 gets over. Okay, thank you.